back to this second lecture in the series of lectures on reservation in services for scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and economically weaker section. In this lecture series, we are talking of the various aspects of reservation in government jobs. Now, in the last lecture, that is the lecture number 1, we talked about the constitutional provision, mainly about Article 16 and the various clauses of Article 16. Today, we will talk about Article 335 and Article 341. Before we start, I would like to take you very quickly to what we had discussed in the lecture 1. If you have not seen it, kindly do watch the lecture 1 before you start the lecture 2. In the lecture 1, we talked about the clause 1 of Article 16. So, equality of opportunity guaranteed under clause 1. Then we talked about the concept of equality amongst equals and the general interpretation of equality, that is reasonable classification is permissible. And then we talked about the clause 4 of Article 16, which is an enabling provision by which the state, if it wants to make reservation in services, can make it, provided the section for which it is making the reservation is a backward class and they are not adequately represented in the services under the state. So those were the two conditions which we learned, which was highlighted by the Indrasani judgment in the year 1992. In the said judgment, the Supreme Court held that reservation is promotion is not permissible under Article 16 and therefore it held it unconstitutional. To neutralize that, clause 4A was inserted by way of 77th amendment. So to neutralize the Supreme Court judgment, this was inserted. Again, in the Indrasani judgment itself, the court had held that the limit of 50% is applicable on the vacancies every year. However, the government decided to keep from the limit of 50% the backlog vacancies as separate. So clause 4B was inserted to neutralize that portion of the Supreme Court judgment in Indrasani where 50% limit was applicable even on backlog vacancy. Today, backlog vacancies are out of the 50% limit. Then we finally talked about the clause 6 of Article 16, by which reservation for economically weaker section other than those SC, ST, OBCs has been provided in the Constitution. And this is what we learned in lecture 1. Kindly do watch it before you start today's lecture. Today we will talk about Article 335 in detail. Article 335 is an important article which has been invoked a number of times before the Supreme Court, and its interpretation has been made by the Supreme Court in various judgments. Basically, it talks about balancing act between the claims of the members of the scheduled caste, scheduled tribe on the one hand, and the efficiency of administration on the other hand. So we will learn what this article and its interpretation. We will also see, after all these amendments were carried out in the Constitution, they were challenged before the Supreme Court as violative of the basic structure of the Constitution, but the Supreme Court held in Nagaraj judgment in 2006 that they are all valid. We'll learn in detail what happened in this. We'll also talk about the definition of scheduled caste and scheduled tribe. What is the definition of SC and ST in the Constitution? We will also learn in detail about Article 341 and 342. This is very important, particularly with reference to its implications of scheduled caste, scheduled tribe populations migrating from one state to another state, from their home state to some other state in search of jobs, in search of other opportunities, and whether they will be treated as scheduled caste, scheduled tribe to the state they have migrated. This is what we will learn. To keep the video short, the first 3 topics I have kept in one video, and this I have kept in another video. And so let's straight away go to Article 335. As you can see, 335 talks about the claims of the members of the scheduled caste and scheduled tribes to services and posts. As if you can read the wording, it says the claims of the members of the scheduled caste and scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in making appointment to services and posts in connection with the affairs of the union or of a state. Now the words consistently with maintenance of efficiency of administration have generally been read as a limitation. ये जो शब्द हैं
कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली इसको कोर्ट ने एक तरह से लिमिटेशन माना है, जो रिजर्वेशन हम क्लॉज 4 से 16 से SC STs को नौकरियों में दे रहे हैं, उसका एक लिमिटेशन माना है। तो दोनों एक तरह से अपोजिंग फोर्सेस हैं दिया है। यानी कि रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का देने से पहले सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि भाई एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, उसकी मेंटेनेंस में कोई सवाल तो नहीं आ रहे हैं, कि उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मोटी सी बात है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसीलिए कई जगहों पे, कई पोस्टों पे हम लोग, भारत सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रिजर्वेशन नहीं है। जैसे साइंटिफिक टेक्निकल पोस्ट ऊपर की पोस्टें हैं, या प्रमोशन में ग्रुप ए के ऊपर की जो पोस्टें हैं वहाँ पे हम रिजर्वेशन नहीं लगाते हैं, या सुपर स्पेशलिटी पोस्ट हैं कई, जिन पे कोर्ट्स ने कंसिस्टेंटली ये व्यू दिया है 335 को ध्यान में रखते हुए कि सुपर स्पेशलिटी पोस्टों पे रिजर्वेशन ना लगाया जाए। However, before we talk in detail about Article 335 and इसका एक दूसरा जो है इंटरप्रिटेशन भी ये दिया जा सकता है, इस देश में जहाँ इतनी विविधता है लोगों के रहन सहन, बोल चाल में और कल्चर में, वहाँ पे ये भी एक इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है कि SC ST जो कि लगभग 22.5% पॉपुलेशन के भाग हिस्सा हैं, उनकी हिस्सेदारी एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान में रखा जाए अगर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। तो एक ये भी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। और ऐसा व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दीनानाथ शुक्ला 1997 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि आर्टिकल 335 को अगर हम आर्टिकल 46, 38 और 16 के बारे में आपने विस्तृत रूप से समझा है, तो 335 और इन सब आर्टिकल्स को एक साथ अगर पढ़ा जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकलता है कि would give the socio-economic empowerment to Dalits and tribes, and the rule of reservation in the matter of appointment to a services or post under the state is part of the constitutional scheme as a positive facility। तो 335 का इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने कहा, ये भी दिया जा सकता है कि SC ST की भागीदारी होनी चाहिए, एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन तभी बनेगा। अगर उनके बिना उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहेगा, हिस्सेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरियों में बहुत कम रहेगा, तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना नहीं होगा। नाउ आर्टिकल 335 में 1996 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, S विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। S विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कंसिस्टेंटली विद मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए वो तो सही है, मगर जो उनके लिए रिलैक्सेशन जो हम दे रहे हैं एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में, तो वो कोई रिलैक्सेशन या लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यानी कि बिकॉज ऑफ आर्टिकल 335 की वजह से अगर कोई रिलैक्सेशन SC ST को दिया तो वो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो फिर भारत सरकार ने 1997 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, जिसमें ये कहा कि रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें कोई रिलैक्सेशन या लोअरिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होगा। और लगभग 2000 मतलब 1997 से लेकर 2000 तक 3 साल तक कोई रिलैक्सेशन या लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रमोशन में शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं था। मगर आर्टिकल 335 को एक बार फिर से अमेंड करा गया 82nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 82nd अमेंडमेंट, जिसमें साल 2000 में एक प्रोविजो ऐड करा गया। अब प्रोविजो वाज एडेड बिलो आर्टिकल 335 और उसमें ये साफ पे ये कह दिया गया कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इस आर्टिकल में स्टेट को ये प्रिवेंट नहीं करेगा अगर वो इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कोई रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स या लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन करना चाहे फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था S विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 82nd अमेंडमेंट 2000।
अब एक बार जल्दी से रिकैप भी कर लेते हैं ये सारे अमेंडमेंट क्या थे। 77th अमेंडमेंट में हमने क्लॉज 4A डाला था, जिसमें ये डालना इसलिए पड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। 81st अमेंडमेंट में हमने क्लॉज 4B डाला था, 50% की लिमिट से बैकलॉग वैकेंसियों को बचाने के लिए। 82nd अमेंडमेंट में हमने प्रोविजो डाला था आर्टिकल 335, जो अभी आपने उसके बारे में जाना है। और 85th अमेंडमेंट है, ये वाला शब्द हमने डाले थे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी मिलेगी एससी एसटी के प्रमोशन को, जब भी उसका प्रमोशन होगा उसी साल से उसको सीनियरिटी। अब ये सारे जो है अमेंडमेंट चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि सारे के सारे अमेंडमेंट जिसके बारे में हमने जाना है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं, और वो कोई बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट नहीं करता है, इसीलिए सारे अमेंडमेंट सही ठहराए गए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस जो अमेंडमेंट प्रमोशन में भी करा गया है, ये क्लॉज 4A डाला गया है, इस बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये सारे जो एनेबलिंग प्रोविजन है, क्लॉज 4A 335 का प्रोविजो, ये सब एनेबलिंग प्रोविजन है, एंड स्टेट्स विल हैव टू मेक आउट अ केस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल डेटा एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये प्रमोशन जो रिजर्वेशन में क्लॉज 4A से डाला गया है, जिसको उन्होंने पहले कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये सही है, वैलिड है, मगर स्टेट को क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो 3 कंडीशन जरा ध्यान से देखिए। पहला उन्होंने कहा कलेक्टिंग ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा शोइंग बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, यानी कि डेटा दिखाओ कि ये क्लासेस अभी बैकवर्ड हैं और वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं। सो कलेक्टिंग क्वांटिफाइबल डेटा शोइंग बैकवर्डनेस ऑफ क्लास एंड इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्लास इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दूसरी कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 335 यानी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो लिमिटेशन हमने अभी समझी है, उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बिना आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं कर सकते। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ensuring that the reservation provision does not cross the limit of 50% and does not obliterate, यानी कि बिल्कुल मिटा ना दे, creamy layer obliterate the creamy layer and that the reservation does not extend indefinitely। ये 3 कंडीशन उन्होंने कहा। अब ध्यान से आप देखिए एक बार और कि बैकवर्डनेस चेक करो, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब बैकवर्डनेस है, ये डेटा लाओ। एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बाधा ना आए, खलल ना पड़े, उसके लिए आर्टिकल 335 का ध्यान रखा जाए। और तीसरी बात कि 50% की लिमिट क्रॉस नहीं होगी, मगर ध्यान दीजिए एक क्रीमी लेयर वाली बात भी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि अब तक नहीं थी, वो डाल दी। तो कई स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने अलग कानून बनाने शुरू करे जब इस जजमेंट के बाद प्रमोशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, और इस जजमेंट के बेसिस पे कई कोर्ट में केसेस लगे, और हाई कोर्ट में और कई हाई कोर्टों ने इसका आधार लेते हुए, नागराज जजमेंट का आधार लेते हुए, रिजर्वेशन उन स्टेटों में जो किया गया था, जैसे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये जो 3 कंडीशन है, इसको फुलफिल करे बिना रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं किया जा सकता। और एक बार से फिर दोबारा से को भारत सरकार ने कोर्ट में एक अपील रिव्यू डाली, उस कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो जजमेंट नागराज का जो जजमेंट आया है, इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाए। इससे भारत सरकार जो है एक मत नहीं थी। दूसरी बात है ये कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा टू शो बैकवर्डनेस, भारत सरकार ने कहा कि इंदिरा साहनी ने भी ये जजमेंट में, ये जो कि 9 जज बेंच था, उन्होंने ये माना है कि SC STs बैकवर्ड हैं, और इसीलिए इंदिरा साहनी ने भी जब नहीं कहा, जो इससे लार्जर बेंच थी, तो 5 जज बेंच के नागराज का ये कहना सही नहीं था। और ये जजमेंट दोबारा से चैलेंज हुआ जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, और इसका जजमेंट आया 26 सितंबर 2018 को, जो कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, The Supreme Court held that there is no need for the judgment in Nagraj to be referred to a 7 judge bench। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपना जजमेंट देखा
और उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है इसको 7 जज भेजने की, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस जो नागराज ने कहा था उसको वो हटा रहे हैं, उसको वो स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरासानी में भी कोर्ट ने ये माना था कि SC STs बैकवर्ड हैं, इसीलिए कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा टू शो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस फॉर SC ST इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मगर साथ में साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्रीमी लेयर जो है एक एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, इसीलिए SC ST का क्रीमी लेयर जो है इसके बारे में सरकार जो शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर हैं उनको हटा के फिर रिजर्वेशन दें, वरना ये रिजर्वेशन उन SC STs के पास ना चला जाए बार बार जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आगे आ चुके हैं, और वो उन शेड्यूल ट्राइब को वंचित ना कर दें जो वाकई में पिछड़े हैं और जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि जो 3 कंडीशन नागराज में रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन से पहले ये चाहिए, उसमें से एक हट चुकी है अब। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैकवर्डनेस फॉर शेड्यूल ट्राइब इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। So this is the position which is continuing as on reservation in promotion. Now we will try to understand the next important article, which is Article 341 about scheduled caste and 342 about scheduled tribe. Now, before we talk about Article 341 and 342, see what it means, let us first of all try to explore this question. What is the definition of scheduled caste, scheduled tribe? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा क्या है? तो हमारा संविधान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो परिभाषा देता है, एक बार उसको देखते हैं। वो कहता है आर्टिकल 366, हमारा संविधान आर्टिकल 366 में ये कहता है, डेफिनेशन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैव द मीनिंग हियर बाय रेस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम। क्लॉज 24 जो है वो कहता है शेड्यूल कास्ट मीन सच कास्ट रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ और ग्रुप्स विद इन सच कास्ट रेसेस और ट्राइब्स as are deemed under Article 341 to be scheduled caste for the purpose of this constitution. और उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहता है कि शेड्यूल ट्राइब means such tribes or tribal communities as deemed under Article 340 to be scheduled tribe for the purposes of this constitution। यानी कि इसको पढ़ के ये समझ में नहीं आता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ये नहीं बताता है हमारा संविधान। ये संविधान एग्जीक्यूटिव पे छोड़ता है कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। केवल सिर्फ इतना कहता है 341 में जिनकी लिस्ट में नाम है वो शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे और 342 में जिनके लिस्ट का नाम है वो शेड्यूल ट्राइब माने जाएंगे। इसीलिए एग्जीक्यूटिव हमारे सोशल साइंटिस्ट जो हैं, एग्जीक्यूटिव ने जो इसका क्राइटेरिया बनाया है शेड्यूल कास्ट का, वो है कि शेड्यूल कास्ट आर बेसिकली बैकवर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो वो जातियां जिनके साथ छुआछूत, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी इसको फेस करना पड़ा है, उन जातियों को हमने शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डाला है। अब इसमें भिन्न भिन्न जातियां हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियां हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई जातियां जो एक स्टेट में उनके साथ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता हुई है, वही जाति किसी और स्टेट में उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं हुई, तो वो उस स्टेट में शायद हो सकता है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के लिए इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट और डिस्टिंक्ट कल्चर, ये कुछ क्राइटेरिया है जिसपे हमने शेड्यूल ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है, उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला है। तो उनको डालने की लिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया है वो 341 और 342 में बताई गई है। तो अब हम 341, लेट अस सी 341, आर्टिकल 341। Now if you see Article 341, it says the President may, with respect to any state or union territory, and where it is a state, after consultation with the governor thereof, by public notification, specify the caste, races or tribes or parts or within the caste, races or tribes, which shall for the purpose of this constitution be deemed to be scheduled caste, will be deemed to be scheduled caste। और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है।
ये कहता है shall be deemed to be scheduled caste in relation to that state or union territory as the case may be। अब इस ये बात जो बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन इसका होता है, यानी कि कोई भी शेड्यूल कास्ट इंडिया में अगर किसी स्टेट में उसको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, तो इस आर्टिकल में 341 का जिक्र है, आर्टिकल 342 में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, सॉरी। अब अगर किसी शेड्यूल कास्ट को हम 341 में लिस्ट करते हैं तो वो किसी स्टेट के लिए ही शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, पूरे भारत के लिए वो नहीं माना जाएगा। ये बात यहाँ से आती है सामने, जहाँ ये आप देखते हैं शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट, फुल स्टॉप नहीं है, इन रिलेशन टू दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो ए शेड्यूल कास्ट विल बी अ शेड्यूल कास्ट इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट और अ पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है सामने आती है 341, और इसके इम्प्लीकेशन हम देखेंगे। जो भी लिस्ट शेड्यूल कास्ट की हो या शेड्यूल ट्राइब की हो, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ वो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है इंडिया में। अब देखिए पूरी इंडिया की कोई शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट नहीं है, वो स्टेट वाइज है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, अल्फाबेटिकली चाहेंगे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद असम है, उसके बाद आप देखिए बी से बिहार है, उसके सी से छत्तीसगढ़ है। तो स्टेट वाइज लिस्ट है, और इस लिस्ट में आप देखेंगे कि कई जातियां ऐसी हैं जो किसी एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब है, हो सकता है वही जाति दूसरे स्टेट में भी शेड्यूल ट्राइब हो। अब जैसे आंध्र प्रदेश है तो आप इसमें देखेंगे जैसे गोंड है, राजगोंड है, ये शेड्यूल ट्राइब है। अब मध्य प्रदेश में जाएंगे, हो सकता है वहां भी आपको गोंड शेड्यूल ट्राइब में दिखे। अब बड़ी सारी जातियां हैं जो आंध्र प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब हैं। अगर लगभग आप देखेंगे 35 जातियां ऐसी हैं, जनजातियां ऐसी हैं जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में। वाल्मीकि ओनली इन द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, ईस्ट गोदावरी, इन डिस्ट्रिक्ट में ही जो वाल्मीकि है वही केवल शेड्यूल ट्राइब। उसी तरह से नायक्स है, तो नायक्स इन द एजेंसी ट्रैक्ट्स जो है वही केवल शेड्यूल ट्राइब्स है। कहीं और का अगर आंध्र प्रदेश के ही स्टेट में कहीं और अगर कोई जाति है नायक जो एजेंसी ट्रैक्ट्स में नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी। कि जैसे गोंड है, बिहार का गोंड। अब बिहार का गोंड अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश में चला जाता है, जहां भी गोंड शेड्यूल ट्राइब है, तो क्या उस बिहार के गोंड के जनजाति के किसी व्यक्ति को आंध्र प्रदेश में अगर वो चला जाएगा जहां भी गोंड शेड्यूल ट्राइब है, तो क्या उसको कोई रिजर्वेशन या शेड्यूल ट्राइब का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जवाब ये है कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको लिस्ट दिखा रहा था कि लिस्ट में कोई अगर शेड्यूल ट्राइब है, ही इज डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अगर कोई गोंड है तो ही शेड्यूल ट्राइब इन रेस्पेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर हम इस गोंड को शेड्यूल ट्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ बिहार भी मान लें, तो आर्टिकल 341 क्लॉज 1 की जो आखिरी की 3 लाइनें आपने देख रही थी, उसका मतलब ही कोई नहीं बचेगा। आखिरी की जो 3 लाइनें आपने देखी हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं बचेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट इन रिलेशन टू दैट स्टेट। इसका कोई मतलब नहीं बचेगा अगर गोंड आंध्र प्रदेश का, अगर उसको हम बिहार में भी शेड्यूल ट्राइब मान लें। मैं एक बार और दोहरा देना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, और बिल्कुल डिट्टो सेम डिट्टो आर्टिकल है 342, जिसमें बजाय शेड्यूल कास्ट के वर्ड शेड्यूल ट्राइब है। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं। अब एक बार इसको क्लॉज 2 को भी देख लेते हैं। इसका जो क्लॉज 2 है, ये तो प्रेसिडेंट ही लिस्ट निकाली थी। प्रेसिडेंट ने जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई है लगभग सारे स्टेट के बारे में 1950 का ऑर्डर है, 1950 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर और 1950 शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, 1950 में ये ऑर्डर निकला था। लेकिन इसको अगर इस लिस्ट में अगर कोई भी नाम डालना है या निकालना है, इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, तो देन क्लॉज 2 देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन ए नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज 1। तो पावर किसके पास है? केवल पार्लियामेंट के पास है। यानी कि आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में किसी भी कास्ट को आप डालना चाहते हैं जो रह गई है गलती से, और अब आपको हमको लगता है भारत में सेंसस के बाद की, तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता, उसमें पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, दोनों सदनों में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा, एंड ओनली देन दैट पर्टिकुलर community can be included in the list of scheduled caste or in the list of scheduled tribes.
So far as scheduled caste, scheduled tribe is concerned, the list can be amended by the parliament only. So state governments, first of all, has got no powers in notifying any scheduled caste or any scheduled tribe in the list of scheduled caste, scheduled tribe. This is the most important thing to be understood. I repeat that state governments have got no powers. We often see that many states declare certain caste as scheduled caste or scheduled tribe, and all of them are declared as null and void by the court because we have seen the powers are only with the parliament and parliament alone. So that was the discussion on Article 335, 341 and 342. Hope you liked it. If you liked it, do subscribe to the channel and you will get automatic updates on the next video. The next video is exclusively on the effect of migration of scheduled caste and scheduled tribes to other states other than their home states. So as we discussed, we will talk in detail about the various court judgments. The position, the law is now settled, and on migration, a scheduled caste, scheduled tribe will not get the benefit of reservation to the state they have migrated. So see you next time. Thank you very much. Bye bye.